Now we start dot product of two vectors. In the earlier lectures, we have just defined what is the vector addition, what is vector subtraction, what is resolution of vectors. On the last lecture, we discussed about the resolution of vector. Just I want to revise it within 1 minute. If it is vector A and if this angle is theta, then this component is A cos theta and this component is A sin theta. This component is the horizontal component and this is the vertical component of vector A, or it is the horizontal component of vector A along this direction x-axis, along this y-axis if it makes angle theta with x-axis. And this component is called AX and this component is called AY. These two things we have read on the last term, and now we come to the product of vectors. So when you talk about the product of vectors, when we talk about a vector, then we have three types of products. In scalar, we have only one type of product. That is either 1 into 2 is equal to 2 into 1 is equal to 2. Multiply करना, 2 into 1 करना, ये सब प्रोडक्ट है. एक ही तरह का प्रोडक्ट होता है स्केलर है. यहाँ एक तरह का प्रोडक्ट नहीं है. यहाँ किस तरह का प्रोडक्ट है? फर्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर. प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. Right? If you have vector A and you have a scalar k, then this product is defined as Ka vector. If you want to make a product of vector A by a scalar k, then it is equal to Ka vector. For example, if you have vector A in three components, Axi plus Ayj plus AZK, then Ka vector is equal to Kaxi plus Kayj plus Kazk. This is the multiplication of vector into three components, and directly you can multiply this component with the scalar k. And now if another example, this is the formula of that. Another example, suppose special case, if vector A is represented by 3i plus 2j plus 5k, then 2a vector is equal to 2 3 6 plus 4j plus 10k. 2 2 4, 2 5 10, that is 2a vector. So it's a very simple product of a vector by a scalar. स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट लेना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, बीच में कोई सिंबल नहीं आता. सिंबल के इंटू ए वेक्टर हो जाता है. और अगर मान लीजिए कोई 3 न्यूटन है, उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है. फोर्स इज 3 न्यूटन. सपोज यू आर राइटिंग सेकंड एग्जांपल, फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन, राइट? एंड सपोज इट इज आई कैप. It means the force is applied 3 Newton along x-axis. If you want to calculate 2F vector, then it will be 6 Newton along the same direction. Only it will multiply the magnitude. So by this product, only magnitude will change. However, the direction of the vector will remain same. So this is first kind of product of a vector by a scalar. Second product is dot product. Second one is dot product of two vectors or scalar product. Sometimes it is called scalar product of two vectors, either dot product or scalar product of two vectors. So dot product of two vectors is defined as the product of their magnitude and the product of cosine of angle between them. क्या डिफाइन किया हमने? देखिए, we have defined dot product of two vectors. Suppose we have vector A, we have vector B. The A is the magnitude of vector A and B is the magnitude of vector B. And theta is the angle made by vector B with vector A, or angle between vector A and vector B. Then dot product of these two vectors may be defined as product of these two magnitudes, magnitude of A and magnitude of B, and product with किसके साथ? Cosine of angle between them. This is called dot product. It is represented by dot, and because it is a scalar quantity, AB scalar, B scalar, cos theta is scalar, under that condition dot
is the symbol to represent the product, so that it is called dot product, and because it is a scalar quantity, so it is also called scalar product. So it is a dot product or scalar product of two vectors. When we will define it, then we'll get AB cos theta. So क्या definition हुई? According to the definition, the product of magnitude of two vectors with product of cosine of angle between them, provided this angle is a small angle between them, this theta is a small angle which is made by vector A with vector B, then this is defined as a dot product. What are the examples of this dot product? Let's take few examples. First example is work done. W is equal to F dot S vector. देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. Work done is the force into displacement. That is a special case of work done in which force and displacement both are in the same direction. अब हम क्या पढ़ेंगे? नई डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे हम वर्क की? वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. किसी फोर्स एफ ने अगर एस डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है तो कितना वर्क डन होगा? फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद एस. और कैसे लिखोगे? एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. So vector f dot vector s, it is a scalar quantity, right? Scalar quantity, there is no need to specify the direction. Direction किसकी होती है? Vectors की होती है. तो देखिए a भी वेक्टर है, b वेक्टर है, दोनों के बीच में डॉट लगा है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का ये सिंबल हो गया इसका डॉट का. Dot means dot product, and because it is a scalar, AB cos theta is a scalar quantity, that's why it is also called scalar product. बात समझ आई? और जब scalar quantity है तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो डॉट प्रोडक्ट की कोई डायरेक्शन नहीं है. ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में आता है. ये एग्जांपल हुआ, इसलिए वर्क भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर होगी. दूसरा, आप क्लास 11 में पावर का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, पावर P is equal to F vector dot V vector. And this is the reason we have not put vector over here, we have not put vector over here. However, F and V both are vectors. पहले हम पढ़ते थे पावर को फोर्स इनटू वेलोसिटी. अब क्या पढ़ेंगे? फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर. एंड थर्ड फॉर्मूला इज जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. बहुत सारे फॉर्मूले हैं इस तरह के. फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए. अच्छा देखिए, ये तो हमने रैंडम वेक्टर लिए, तो सिंबल है A is any vector, B is also any vector. यहाँ दोनों की अपनी सिग्निफिकेंस है. In this example, A is the area vector and B is the magnetic field vector. So magnetic field भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है. इन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट. सो हमें डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया. क्या क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें समझ आ गया. डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A and magnitude of vector B and cosine of angle between them. Cosine is a trigonometrical function, sine, cos, tan, angle between them. How it is represented? A dot B is equal to AB cos theta. And what is the symbol to represent dot product? Put a dot. Dot भी नीचे डॉट लगाते हैं, बीच में नहीं लगाते, A के बिल्कुल सीध में डॉट लगाते हैं. And which kind of product it is? Scalar product, right? What are the various examples? Work, power, magnetic flux, etc. What are the properties of dot product? Now we come to properties of dot product. Properties of dot product. Dot product. What are the properties? Let's come to the property. Properties. First property, it obeys commutative law. It obeys commutative law. What do you mean by commutative? If you take dot product of vector A with vector B or vector B with vector A, you will get the same result. A dot B is equal to B dot A. That's why it is called commutative law. It commutes. Commute करता है dot product. कैसे देखिए, इसको प्रूव भी कर सकते हैं. अच्छा, ये तो वैसे हो गया जैसे हमने वेक्टर सम में भी लिया था. वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A. वहां हमने किससे प्रूव कर दिया था? ज्योमेट्री से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमने बनाया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से. यहाँ देखो कैसे करेंगे. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बताओ? A डॉट B. क्या लिख सकते हैं हम इसको? A B cos थीटा. एंड व्हाट इज A B cos थीटा? मैग्नीट्यूड है. कैन आई राइट B A cos थीटा? और cos थीटा को क्या माइनस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. कैसे देखो, अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर कौन सा है? B है. ये एंगल कितना है? थीटा. तो बताओ इधर एंगल क्या होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव होता है कि नहीं? अब आप A इंटू B को तो B इंटू A लिख सकते हैं. 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3.
और cos थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा। अगर इधर से लेंगे थीटा और इधर से क्या लोगे तो माइनस थीटा। तो अगर b से a की तरफ ले रहे हैं तो माइनस थीटा, a से b की तरफ ले रहे हैं तो प्लस थीटा। और बताओ बी ए cos माइनस थीटा किसके इक्वल हो गए, दैट इज इक्वल टू बी ए cos थीटा। और ये बी ए cos थीटा किसके इक्वल होता है, b डॉट a। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी कि नहीं। So in this way we can prove that vector a dot b is equal to vector b dot a। आप दोनों में किसी भी तरह से लिख लीजिए, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है a डॉट b प्लस सी। अगर आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है तो क्या करेंगे, a is distributed on b and now a is distributed on c, you have got the same result। a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c। so this a is distributed to b as well as to c if you first take the vector sum of these two vectors b and c and then take dot product with third vector a, then you will get result dot product of vector a with b and plus or vector sum with dot product of a with c। so this is another property। come to the third property, the dot product of a vector with itself, dot product of a vector with itself is square of its magnitude, square of magnitude। what does it mean, a dot a is equal to a square, magnitude का स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a डॉट ए, बताइए a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, a, b का की जगह मैग्नीट्यूड क्या हो गया, a इंटू क्या हो गया, a स्क्वायर। और a और a वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0, cos 0 कितना होता है, 1। सो a इंटू cos 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में b की जगह अगर a रख दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर इसी में एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल जैसे आई डॉट आई होता है, आई हम जानते हैं यूनिट वेक्टर, ये आई भी जानते हैं यूनिट वेक्टर है। तो बताओ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। दूसरे में बताओ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1। इस आई का मैग्नीट्यूड भी 1, इस आई का मैग्नीट्यूड भी 1 हुआ जैसे। और दोनों के बीच में आई और आई के बीच में एंगल कितना है, 0 इंटू cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1, that is equal to 1। so I dot I is equal to 1। similarly J dot J, similarly K dot K। so these are the few properties of this vector। एक और प्रॉपर्टी लेते हैं नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। क्या मतलब हुआ, if vector A is perpendicular to vector B then A dot B is equal to क्या आएगा, AB cos 90। and what is cos 90, 0। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आपको ये प्रूव करना है टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए एंड दिस डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0 और वाइस वर्सा। If dot product of two vector is 0 then these two vectors will be perpendicular to each other। तो कितनी प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट इज क्या है, इट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड क्या है, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड क्या होगी इसमें, द स्क्वायर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें, a डॉट b इज इक्वल टू 0 कब, व्हेन a इज परपेंडिकुलर टू b। तो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर्स का, डेफिनेशन, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, देन एग्जांपल्स एंड देन प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, ओके। कम टू नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। व्हाट आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। देखिए अभी जो हमने तीन वेक्टर्स लिए थे, ये देखिए ये हो जाएगा, यहां से ये आई कैप है, ये जे कैप होगा, ये के कैप, दिस एक्सिस इज एक्स वाई एंड जेड। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स मीन ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स लाइक पहले क्या लोगे, आई डॉट आई, आई डॉट जे, आई डॉट के, J dot I, J dot K, and similarly K dot I,
k डॉट j एंड लास्ट इज k डॉट k। इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, सब डॉट प्रोडक्ट लेना है। देखिए अभी हमने पीछे प्रूव किया i डॉट i, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। i का मैग्नीट्यूड क्या है 1, इस i का मैग्नीट्यूड कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और अभी हमने इस फॉर्मूले से प्रूव किया था i की जगह 1, इस i की जगह 1, डोंट पुट i एंड i बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, जिसके ऊपर भी कैप लग जाती है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इनटू cos 0 अगेन 1 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ बताओ j डॉट j में 1 इंटू cos 0 ये भी 1 आएगा, k डॉट k भी क्या आएगा 1 इंटू cos 0 इज इक्वल टू 1। व्हाट अबाउट दिस i डॉट j, दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। अभी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी है, जब cos 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, 1 इंटू cos 90 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से ये भी 0 आएगा, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। So these are called dot product of orthogonal unit vectors. What are orthogonal unit vectors? Vector I, vector j, vector k, and what is important property of these vectors? These vectors are of unit magnitude and are perpendicular to each other. दोनों तीनों वेक्टर्स एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इन्हीं को हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक दूसरा हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। नाउ टू वेक्टर्स, देखिए अब कंपोनेंट्स के फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। हम किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, व्हाट इज ax ay az, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a that is along x axis, along y axis and along z axis. So this vector A can be represented in terms of its components ax, ay and az, right? ये लिख सकते हैं। Similarly, what can we write vector B? कैसे लिखेंगे bxi plus byj plus bzk। अब ये दो वेक्टर्स हैं और आपसे कहा जाए फाइंड a डॉट b, क्या फाइंड करना है a डॉट b। वी हैव टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले देखिए इनमें से कौन सा लॉ लगाएंगे। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। कैसे लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ऐसे लगेगा ax i कैप डॉट। देखिए इसका डॉट लेंगे पहले तीनों के साथ, किस किस के, bxi प्लस byj प्लस bzk, ओके प्लस पहला साइन हो गया। अब ax i हो गया, अब कौन सा लेंगे y लेंगे। सिमिलरली ay j और डॉट यहां लगाएंगे, डॉट किसके साथ, पूरा ब्रैकेट लो, bxi कैप byj कैप प्लस bzk कैप, और एक और टर्म बच जाती है, कौन से वाली, थर्ड टर्म, इसका भी लो इसके साथ az, यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, ये डॉट प्रोडक्ट। अच्छा इसमें अगर आपने ये साइन नहीं लगाया तो गलत माना जाएगा। अब जब मैग्नीट्यूड का इन दोनों के बीच में आप कोई साइन लगाएं या ना लगाएं डजंट मैटर, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, बट यहाँ आपको डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, देखो यहाँ पर कौन से वाला आएगा, bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bzk कैप, राइट, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, ax को डिस्ट्रीब्यूट करो bx पर, कैसे करेंगे, ax bx, i को करो, क्या मिलेगा i डॉट i, ये टर्म हो गई। फिर मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, ax by क्या आएगा i डॉट j, इसी तरह से इसको तीसरे वाले के साथ करो, ax bz i डॉट, क्या आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, सेकंड टर्म लो। अब ये वाला करो इसमें ay bx क्या आएगा j डॉट i प्लस ay by j डॉट j प्लस ay bz that is j dot k. Similarly third one az bx that is equal to, this is az and third component k cap, this is k cap also there, k cap I plus az by k cap dot j cap plus az bz k cap dot k cap। कौन सा लॉ लगाया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहली टर्म को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पर, फिर दूसरी टर्म को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी वेक्टर पर, और थर्ड को भी हमने किस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बी वेक्टर। सबको अलग अलग आपने कर लिया। अब देखिए इसमें से ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है और ये 1 है, और बाकी जितनी वैल्यू है वो सब कैसी है, 0 है। तो व्हाट अबाउट द रिजल्ट, दैट इज ax bx प्लस ay by प्लस az bz। एंड डोंट थिंक सो सर इसको हम abz स्क्वायर लिख दें, इसको हम abx स्क्वायर, इसको aby स्क्वायर, हमने कल बताया था लास्ट टाइम पर, ये सफिक्स में है, ये भी किस में है, सफिक्स में है। इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ a एंड y, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along y axis।
So what is this? A dot B. So A dot B is equal to AX BX plus AY BY plus AZ BZ. So one more formula we have got, that is equal to AX BX plus AY BY plus AZ BZ. अब देखिए दो फॉर्मूले आगे आपके पास बहुत पड़े। दो फॉर्मूले तो पहले पढ़ा था, AB cos थीटा। ये कब लगेगा? When you have given magnitude of A, when we have given magnitude of vector B, and if theta is also there, then we can apply this. So we have got two formula of A dot B. One is the AB cos theta, another AX BX AY BY and AZ BZ. This formula can be applied when vector A and vector B are in terms of components, and this formula can be applied when the magnitude of A, magnitude of B and theta is also given. तो दोनों फॉर्मूले अलग अलग तरीके से हैं। ये हमारे कंपोनेंट्स के टर्म्स में आया, ये फैक्टर ये हमारा कौन सा है? जनरल फॉर्मूला है। कंपोनेंट्स क्या होता है? वेक्टर A इक्वल टू AXI AYJ AZ, BX इज इक्वल टू BXI BYJ एंड BZ की। नाउ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, हाउ कैन वी ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट इट? ज्योमेट्रिकली कैसे इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये हमें और सीखना है। तो देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इफ सपोज दिस इज वेक्टर B, सपोज वो पॉइंट दिस इज B and this is vector A and suppose this angle is theta, अब हम इसमें AB cos theta कैसे निकालते हैं? देखिए हम AB cos theta, suppose this point is Q, AB cos theta, now A dot B, हमें A dot B निकालना है, किसके इक्वल होगा? AB cos theta, ठीक है। और अगर ये AB cos theta है तो हम इसको ये भी लिख सकते थे, सपोज दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, चलिए जनरलाइज करके यही ले लीजिए। अब ये व्हाट इज दिस AB cos theta? B cos theta is the component of vector B along this vector A। और क्या इसका B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं पढ़ा है हमने? आज भी हमने यहीं से स्टार्ट किया था। B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, और अगर हम क्या ले लें? BM ले लें, तो देखो हम A को क्या लिख सकते हैं? A is the magnitude of A, that is OP, and that is what is B cos theta? B cos theta is equal to OM। इस ट्राइंगल में OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन ट्राइंगल OQM, OM is equal to B cos theta, and what about this OP? OP is equal to A, that is magnitude of vector A। अगर एरो लगाते हैं डायरेक्शन में तो वेक्टर लगाना पड़ेगा, और अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो देखिए B cos theta की जगह तो क्या लिख दिया हमने? OM। B cos theta की जगह तो OM लिख दिया, और OP की जगह क्या रख दिया हमने? A लिख दिया है। अब ये क्या बन सकता है? ये क्या है? व्हाट इज OP? अगर हम इसको लिखें, OP इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A multiplied by किसके साथ? What is OM? OM is component, rather magnitude of component, किसका component? Of वेक्टर B along वेक्टर A। B वेक्टर का A के along component है, या तो कह दीजिए B का horizontal component, और horizontal direction कौन सी होगी? A वेक्टर is the horizontal direction। तो क्या हम ये नहीं कह सकते B का जो horizontal component है, it is the component of B along वेक्टर A? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन किसके अलोंग है? A के, तो B का कंपोनेंट किसके अलोंग होगा? ये A के कंपोनेंट के अलोंग हो गया, और यहाँ से ये किसके इक्वल है? A डॉट B, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A इज इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड, व्हाट इज दिस? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A। कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A को? डिवाइडेड बाई A, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई A। एंड व्हाट इज A वेक्टर अपॉन A? A वेक्टर अपॉन A क्या पढ़ गए हम? A वेक्टर अपॉन A इज A कैप डॉट B वेक्टर। व्हाट इज A कैप? वेयर A कैप इज वेक्टर A अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसे क्या, कौन सा वेक्टर कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो देखिए वेक्टर A डिवाइडेड बाय A को क्या लिख दिया हमने? A कैप, और बीच में कौन सा साइन लगाया? डॉट प्रोडक्ट। तो आप आइदर यू राइट लाइक दिस, और यू राइट लाइक दिस, और यू राइट लाइक दिस। व्हाट इज दिस? मैग्नीट्यूड। ये निकाला आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ B अलोंग वेक्टर A। जब इसको निकालोगे तो ये वाली टर्म इधर क्या हो जाएगी? डिवीजन में आ जाएगी। A डॉट B अपॉन, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में आ जाएगा शिफ्ट होकर के। और अगर हम इसमें, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। अगर हम निकालें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A, अब बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा? कंपोनेंट में और मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है? जब हम कंपोनेंट लिखते हैं तो क्या आनी चाहिए? डायरेक्शन भी आनी चाहिए। किसके अलोंग डायरेक्शन है? अलोंग A वेक्टर। A वेक्टर के अलोंग कौन सी डायरेक्शन होगी? बताइए। यूनिट वेक्टर हमने आई कैप क्या बताई थी? किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस। इसमें बताओ ये क्या हो, किधर होगा? अलोंग A वेक्टर। जो हम एक्स एक्सिस लेते थे इसमें एक्सिस नहीं ले रहे। अगर इसमें एक्सिस नहीं ले रहे हैं, एक्सिस की जगह कौन सा वेक्टर ले रहे हैं? A। तो अगर A वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो क्या लेंगे? A कैप।
और अगर एक्सिस लोगे तो क्या आएगा आई कैप। बात समझ आई ना। तो हम यहाँ एक्सिस नहीं ले रहे हैं ax, बल्कि कौन सा वेक्टर ले रहे हैं a, और a वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है a कैप। हमेशा यूनिट वेक्टर क्या प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। तो ये तो आपका है मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी इसमें, डायरेक्शन होगी a कैप। तो इसको a कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a। इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर ए। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे। तो जब भी आपको प्रोजेक्शन निकालना हो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे, क्या करोगे, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देना। और सिमिलरली अगर हम a का b पे लें, एक तो ये बन गया सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर b इज इक्वल टू, b की जगह a कर दो, a की जगह b कर दो, b कैप डॉट a प्रोडक्ट इनटू क्या आ जाएगा b कैप। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ से, a डॉट बी कैप और यहाँ बी कैप। देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है बीच में, क्यों, ये कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर है, और यहाँ साइन है, कौन से वाला साइन है, यहाँ पर, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब आप बी डॉट ए लिखे वेक्टर में, ये भी दोनों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, दिस इज ऑल्सो द वेक्टर, दिस इज ऑल्सो द वेक्टर। इसमें डिफरेंस क्या है, ये मैग्नीट्यूड किसका है, इसका 1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, a है, कैप लगाते ही 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं a डॉट b कैप इनटू b कैप। सो व्हाट इज दिस b कैप, b कैप गिव द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। तो एक नया फॉर्मूला हमें मिल गया है। अगर हमसे कहा जाए फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b कैप मल्टीप्लाइड बाय b कैप। अगर हमसे कहा जाए फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग a दैट इज a कैप डॉट b वेक्टर इनटू a कैप। कोई भी एक फॉर्मूला लर्न कर लो, जनरली ये वाला लर्न कर लेते हैं, इसलिए कर लेते हैं कि a का b के ऊपर कंपोनेंट है या प्रोजेक्शन है। तो एक ही बात है, आइदर यू राइट कंपोनेंट और यू राइट प्रोजेक्शन। हम कंपोनेंट भी कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला आपको आता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इनटू b वेक्टर, तो जब भी आपको कंपोनेंट, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आपको लर्न करना पड़ेगा, जब भी आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ये वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर हमें केवल कंपोनेंट चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो हम यहाँ डायरेक्शन भी बताएंगे। सो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है, ज्योमेट्री के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ज्योमेट्री के टर्म्स में क्या होता है, किसी ट्राइंगल की साइड देना, मल्टीप्लाई करना, एरिया निकालना, ये सब क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल कहलाता है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम यहाँ से ये फॉर्मूला बनाएंगे। समझ आ गया, सबको दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। ये बी कॉस थीटा फॉर्मूले से आया। बी ए की जगह क्या लिखा हमने, ये लिखा मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, और ये ओ एम क्या हो गया, बी कॉस थीटा, इस वाले ट्राइंगल से लिखा हमने। और फिर ये क्या कहते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। और ये कंपोनेंट का फॉर्मूला हमने यहाँ से जनरेट कर दिया है। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो देखिए हमने आज क्या सीखा, हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट बाय ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, देन डॉट प्रोडक्ट, formula definition of dot product, formula of dot product, examples of dot product, properties of dot product of orthogonal unit vectors in terms of the components, and finally we have studied geometrical interpretation of dot product। क्या geometrical interpretation होता है ये भी हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। So ये सब फॉर्मूले हैं regarding the dot product।